Good morning, students, and welcome to today's class. Once again, a very warm welcome to you all. And how are you all? I hope you all are fine, safe, and healthy at your homes, right? Now, the important thing is studies that we are continuing, and in studies, we are taking the subject English, right? In that, now, today, the topic or the chapter we are going to take is the poem. That is poem number 3, that is Macvity, the mystery cat. Macvity जो क्या थी, एक रहस्यमय बिल्ला था. ओके, mystery cat, that is एक mystery मतलब रहस्य, तो रहस्यमय बिल्ला. So, do you have a pet cat? Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macvity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. Now, do you have a pet cat? क्या आपके पास कोई pet cat है? And have you ever noticed कुछ भी उसके बारे में आपको रहस्य जैसा कुछ mysterious लगा है कभी भी about your pet cat? It is not easy. ये easy नहीं है to say whether हर cat जो होती है उसकी कोई mystery होती है या नहीं होती. But for sure about the cat which we are studying in today's poem, that is Macvity, वो एक mystery cat है. This is sure. And what is it that makes him a perfect mystery? Now this is a big question over here, that ऐसा क्या है जो उसे एक perfect mystery cat बनाता है. Now read the poem and find out. Now we are going to read the poem and we are going to find out what is mysterious about Macvity. So Macvity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. Here's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macvity is not there. So here it says कि Macvity क्या है? Is a mystery cat. Macvity एक रहस्य में एक mysterious cat है. He is called the hidden paw, and Macvity को क्या कहा जाता है? Macvity को एक hidden paw समझते हो, पंजा, एक गुप्त पंजा भी कहा जाता है. और ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि मैकविटी जो है ना वो एक मास्टर क्रिमिनल है, बहुत ही बड़ी, जो हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ा जो पहुंचा हुआ एक क्रिमिनल होता है, एक अपराधी होता है, वैसी है. हु कैन डिफाई द लॉ, जो लॉ को डिफाई कर सकती है, जो एक तरह से कानून को धोखा दे सकती है, कानून को डिसओबे कर सकती है. तो इस तरह की कैट कौन है? मैकविटी. ही इज द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और जो पूरा का पूरा स्कॉटलैंड यार्ड है ना, दैट इज द स्कॉटलैंड पुलिस. वो उन सबके लिए एक पजल है, एक बेफिलमेंट है, एक उलझन है. उसको कोई भी जो है नहीं पकड़ पाता. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है, जो अपने आप में यही हम बोलते हैं कि अक्यूज करने का, फाइंड करने का, लोकेट करने का, सर्च करने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी वो क्या है? इट्स ए डिस्पेयर, मतलब उनके लिए एक निराशा हाथ लगती है हमेशा. वो भी उसको किसी भी तरीके से सर्च एंड फाइंड नहीं कर पाते. When they reach the scene of crime, क्योंकि जैसे ही पता चलता ना that Macvity has created a crime over here, या Macvity ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, as soon as the Scotland Yard and the flying squad reaches at that spot, at the scene of the crime, Macvity is not there. Macvity वहाँ पे कभी मिलता ही नहीं है. Macvity is not there, escaped from there. So we can say that is why it is said that Macvity is a mysterious cat. वो एक रहस्य में बिल्ला है, क्योंकि वो कहाँ है, कहाँ से आया, कहाँ गया, ये अपने आप में हमेशा एक रहस्य ही बना हुआ रह जाता है. Macvity, Macvity, there's no one like Macvity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of the crime, Macvity is not there. So Macvity, Macvity, there's no one like Macvity. So Macvity के जैसा कोई भी नहीं है. Nobody is there like Macvity. उसके जैसा स्मार्ट कोई नहीं है, उसके जैसा शातिर कोई नहीं है. He is broken every human law. Each and every human law, each and every human regulations, rules has been broken by Macvity, and he breaks the law of gravity. And also we can say that Macvity तो इतना powerful है, इतना mysterious है, that Macvity even break the law of gravity. वो तो जो हम बोलते हैं ना ग्रेविटी का जो नियम है, उसने तो वो भी तोड़ दिया. ग्रेविटी किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वो जहां है वो ग्राउंड पे मिलती ही नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मैक्विटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी टू.
एंड हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, और उसका जो पावर है ऑफ द लेविटेशन, लेविटेशन मीन्स टू फ्लाई इन द एयर, वो जो उसकी पावर है ना, दैट वुड मेक इवन अ बेगर स्टेयर, एक बेगर जो होता है, भिखारी जो होता है ना, वो भी उसको एक तरीके से देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ, टकटकी लगा कर, मतलब स्टेयर, मतलब आप जब एक टक किसी चीज को देखते हो। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, एंड सिमिलर थिंग हैपेंस अगेन, एज सून एज यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, वेयरएवर मैक्विटी हैज क्रिएटेड अ क्राइम, आप जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचते हो, सीन पे पहुंचते हो, मैक्विटी इज नॉट देयर, सेम थिंग हैपेंस अगेन, डू दे फाइंड मैक्विटी ओवर देयर? नो, बिकॉज मैक्विटी जो है वो रहस्य ही रह गया कि वो कहाँ गया हमें नहीं पता, बट मैक्विटी इज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द crime. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macvity is not there. आप उसे बेसमेंट में ढूंढ लो, बेसमेंट दैट आर द अंडरग्राउंड्स, एंड यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको एयर में, ऊपर आसमान में, हवा में ढूंढ लो, इन द एयर. बट आई वुड लाइक टू टेल यू once and once again, the poet is saying that Macvity is not there. Macvity is to be found nowhere. कहीं पे भी ढूंढो, either in the basement or in the air, Macvity is not there. Macvity, a ginger cat. He is very tall and thin. Macvity is a ginger cat. ओके, एंड मैक्विटी इज वेरी टॉल एंड थिन. मैक्विटी क्या है? एक जिंजर कैट है. जिंजर कैट कहने का क्या मतलब है? दैट मैक्विटी ब्राउन एंड ऑरेंजिश कलर का कैट है. ठीक है, ब्राउन एंड ऑरेंजिश कलर का कैट है, एंड इज वेरी टॉल एंड थिन, बहुत ही टॉल है और बहुत ही थिन है. दैट इज, टॉल मीन्स बहुत लंबी कैट है, एंड थिन मीन्स बहुत ही पतली कैट है. एंड यू वुड नो, एंड आप देख लोगे उसको, देखते ही जैसे आप उसको देखोगे ना, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर sunken in, कि उसकी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल अंदर की तरफ धसी हुई हैं. His brow is deeply lined with thoughts and his head is highly domed. उनकी जो आईब्राउज हैं वो बिल्कुल कैसी हैं? डीप लाइंड विद डीप थॉट्स, बहुत ही थिंकिंग वाली, डीप थिंकिंग वाली है. एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उनका जो हेड है वो कैसा है? इज हाईली डोम्ड. डोम्ड कहने का मतलब बिल्कुल एक बहुत बड़े गुंबद की तरह उसका हेड है. Now the thing is कि ये तो हमने देखा ये, but ultimately what does the poet wants to convey through this poem? He wants to say कि जैसे आप मैक्विटी, तो वो कह रहा है कि हर जो व्यक्ति होता है ना, ईच एंड एवरी पर्सन जो होता है, वो अपनी नेगेटिविटीज का, अपनी जो उसकी पावर्स होती हैं उसका नेगेटिव यूज ज्यादा करता है. ठीक है, बट वी शुड अवॉइड दैट नेगेटिव यूज. एंड बल्कि जो हमारे पास में पावर्स होती हैं, वट एवर पावर्स वी हैव, हमें उसका यूज कहाँ करना चाहिए? हमें उसका यूज बेटरमेंट के लिए करना चाहिए, पीपल की हेल्प के लिए करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सिमिलरली मैक्विटी हैज सम स्पेशल पावर्स, एंड उससे वो क्या करती है? इट क्रिएट्स क्राइम. मैक्विटी क्राइम क्रिएट करने के लिए उन पावर्स को यूज कर रही है, एंड विच इज बैड. सिमिलरली इफ ह्यूमंस, इफ पीपल हैव सम वेरी स्पेशल पावर्स, दे यूज इट फॉर नेगेटिव थिंग्स. Rather, it is good to use them for the betterment of the people, not for the negative purposes. And secondly, what they want to say that negativity जो है ना, it gives a person what? Negativity. आप हमेशा देखना, person who is very honest and hale and happy person होगा ना, वो हमेशा कैसा होगा? बहुत ही गुड लुकिंग होगा, बहुत ही चीयरफुल होगा, हमेशा ग्लोइंग और हैप्पी लगेगा. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर कोई पर्सन ऐसा है, जो पर्सन बहुत ही माइजर टाइप का पर्सन है, ऑलवेज वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ बैड थॉट्स रखता है अपने माइंड के अंदर, है ना, तो उस तरह का जो पर्सन जो हमेशा कहीं ना कहीं कोई क्राइम्स, कोई परेशानी, कोई इरिटेशंस इनके बारे में सोचता रहता है, तो इस तरह की अगर कोई पर्सन होता है ना, यू ऑलवेज सी देम कि उनकी जो लुक्स होंगी ना, दे विल नेवर बी गुड लुकिंग, और उनकी जो लुक्स होंगी ना वो बहुत ही बिगड़ जाती है. सो दैट इज व्हाई इट इज, जो हमें यहाँ से जो एक मॉरल मिल रहा है इससे ये है कि जब हम भी, हमारी जब नेगेटिव अप्रोच होती है ना, वो हमेशा एक पर्सन को बहुत ही डिफॉर्म कर देती है. एंड पर्सन को क्या करना चाहिए? हमेशा शुड ट्राई टू स्लीप नाइसली, स्लीप वेल, अच्छे से सोने की आदत डालनी चाहिए, हमें नहीं डालनी चाहिए. वी शुड नॉट ट्राई टू स्लीप सो डीप, बल्कि हमें हमेशा कैसे सोना चाहिए? लाइक अ डॉग और अ कैट, जैसे कि हल्की सी भी आहट होना तो वी शुड वेक अप, हमें इमीडिएटली उठ जाना चाहिए.
है ना, दैट इज वाई एंड इट इज एक्सप्लेन्ड इन द लाइन्स। ये कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, देखो, लाइक हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम द निग्लेक्ट, हिज whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake। तो हो गया ना कि आपको कभी भी इतनी डीप स्लीप में नहीं जाना चाहिए। तो देखो वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं नेगेटिविटीज के कारण, इन्हीं निग्लेक्ट के कारण उसका जो कोट है पूरा डस्टी हो गया, उसके विस्कर्स हैं बिल्कुल अनकॉम्ड है, वो अपने हेड को साइड टू साइड स्वे कर रही है बिल्कुल विद द मूवमेंट, जैसे स्नेक के मूवमेंट्स होते हैं इस तरीके से। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, जब आपको लगता है कि मैक्विटी इज हाफ asleep, ऐसा नहीं होता है, वो क्या होती है, मैक्विटी इज ऑलवेज अवेक, मैक्विटी हमेशा जग रहा होता है, वाइड अवेक। मैक्विटी there's no one like मैक्विटी एंड कोई भी मैक्विटी जैसा नहीं है। For he is find in flying shape a monster of depravity, you may meet him in the by street, you may see him in the square, but when the crime is discovered मैक्विटी is not there। तो ये बोल रहे हैं ये मैक्विटी जो है ना, ये कह रहे हैं कि उस शेप का है जो कि एक तरह से एक मॉन्स्टरस हो, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। लाइक हम मॉन्स्टर को हम जैसे बोल देंगे बहुत बड़ा जायंट हो गया या बहुत बड़ा राक्षस जैसी शेप का एक क्रीचर है ये, एंड आप उसको मिल सकते हो, यू आर एबल टू मीट मैक्विटी, वो आपको मे बी कोई एक बहुत ही किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रीट में मिल जाए या आपको किसी स्क्वायर पे, दैट इज चौराहे पे मिल जाए। बट द थिंग इज व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, कभी भी जब कोई क्राइम डिस्कवर्ड होता है ना, देन मैक्विटी इज नॉट देयर, देन ये एक रहस्य होता है, एक मिस्ट्री होती है, दैट मैक्विटी इज नॉट देयर। टी.एस. इलियट ने पोएम को लिखा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दस वी कैन से हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, हल्की सी आहट होते ही, हल्का सा कुछ हम बोले मूवमेंट होते ही हमें सडनली वी शुड वेक अप और हमें अलर्ट रहना चाहिए, एंड वी शुड नेवर बी लाइक दिस मैक्विटी, हमें मैक्विटी जैसा कभी नहीं बनना है। वी शुड नेवर हैव नेगेटिविटी इन आवरसेल्व्स और वी शुड नेवर स्प्रेड नेगेटिविटी अमंग अदर्स। इफ वी हैव पावर्स वी शुड यूज देम फॉर पॉजिटिविटी, ना कि हम उसको नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए नेगेटिविटी की फॉर्म में हम उसको यूज नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज एंड वी विल यूज एंड वी शुड use our powers, whatever powers we have, we should use them for the positivity of the people around us, and we should never be like the McVitie, that is the mysterious cat, mystery cat, that is McVitie। Okay, so T.S. Eliot wrote this and I hope this poem is very well clear to you all, अच्छे से आपको समझ में आ गई है। So we'll be doing the question answer and PDF section in our next class। Till then you have to read this, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे and I hope it is well explained, तो आपको सब समझ में आया होगा, and we will do the PDF, that is question answer part and word meanings, in our next class। Okay, so till then keep studying, take care of yourself, stay home and stay safe।